Welcome to second part of chapter 1 Political Science class 10th Power Sharing। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो बेल्जियन लीडर्स ने किए, पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, ये बहुत एडवांटेजियस रही। तो ये पॉलिसी जो है, इसके एडवांटेजेस क्या थे ये देखते हैं अब। दिस पॉलिसी प्रूव्ड हेल्पफुल टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू कम्युनिटीज, फ्रेंच एंड डच, because no single community can take any decision unilaterally, means major decisions, for which the support of all communities are required. This policy helped to avoid possible disintegration in the country, and when many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarters. तो ये जो तालमेल की पॉलिसी, एकोमोडेशन की पॉलिसी जो है, इसको पूरे वर्ल्ड में बहुत सराहा गया, इसकी बहुत तारीफ हुई। वट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंट्रीज डेल्ट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग the interests of and feelings of and wishes of all communities in the country. So, mutually acceptable arrangement एक बना जो बेल्जियम में, वो कंट्री की यूनिटी में बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ। एंड इन द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका shows that if the majority community wants to dominate its power forcefully on other communities, it will be harmful for the unity of nation. It can disintegrate the nation, and it was the cause of civil war in Sri Lanka. Why power sharing is desirable? Why power sharing is worthy? Why it is suitable? There are two sets of reasons are given in favor of power sharing. One are prudential reasons and second are moral reasons. Prudential reasons are a careful calculation of gain and losses. थोड़ा बिजनेस जैसा लग रहा है, बट जो पॉलिसी है वो भी बेनिफिट्स और लॉसेस लेकर आती है। आपने देखा स्टोरी में, बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी में। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है पावर शेयरिंग का, वो ये हैं, it helps to reduce the possibility of conflicts among different social groups. Power sharing ensures the stability of political order in the country, thus enhances unity in the country. Prudential reason means the power sharing will bring better outcomes in the country. The second set is moral reason. A very act of power sharing as valuable, means डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कंपटीशन, इसका कंपैरिजन किसी और पॉलिसी से नहीं है। विदाउट पावर शेयरिंग देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट एज पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्नड, क्योंकि पॉलिसीज़ का असर लोगों पर ही तो पड़ता है। उन्हीं से कंसल्ट करके जो पॉलिसीज़ हैं उनको लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो लोग जो हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं, जिससे देश में यूनिटी आती है। एंड पीपल थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम, लोगों की साझेदारी हो जाती है सत्ता में, लोगों की हिस्सेदारी हो जाती है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो है एटमॉस्फेयर बन जाता है पावर शेयरिंग से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट पावर मस्ट रेस्ट विद वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट सेम प्लेस। ऐसा माना जाता था कि अगर पावर शेयरिंग जो है वो हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो क्विक डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। But after the existence of democracy, it was changed. Now power sharing is the spirit of democracy, हमने अभी पढ़ा था।
कि पावर शेयरिंग के बिना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इन डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन बी सीन in different ways. One, horizontal power sharing means power sharing among legislature, executive and judiciary, all the three organs of government. This is called horizontal distribution of power sharing because all the three organs are placed at same level. They have their own powers. In previous classes also you have learnt legislature makes law, executive has power to implement them and judiciary has power to settle disputes. There is a system of check and balance among these organs. For example, judges are appointed by executive and after the appointment judges can check the working of legislature and executive. कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा या इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो जुडिशरी के पास राइट है चेक करने का कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। द सेकेंड वन इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Central government for entire country, state governments for states or provinces, and lower than state governments there are municipalities and panchayats. Municipalities in cities and panchayats in rural areas. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं। बहुत सारे कंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं भी हैं, लेकिन लाइक इंडिया जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो जूरिसडिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का और पंचायत राज जो सिस्टम है, म्यूनिसिपैलिटी है, सभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, इनके जूरिसडिक्शन है, पावर्स हैं, सभी कुछ ले डाउन है। अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। Community government of Belgium is very good example of such type of arrangement. In India also reserved constituencies for weaker sections. This is example of social and linguistic groups of power sharing. Means the participation of social and linguistic groups in power sharing. Power sharing also can be shared in political parties, pressure groups and movements. At the time of election we see heavy competition in different parties. हर पार्टी इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर हमेशा नहीं रहती है। डिफरेंट पार्टीज एफर्ट करती हैं पावर में आने के लिए और आती भी हैं। कभी कांग्रेस का रूल है, कभी बीजेपी का रूल है या किसी और पार्टी का है, तो ये पावर पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। कोलिशन गवर्नमेंट भी इसका एग्जांपल है। व्हेन देयर इज नो सिंगल पार्टी हु गेट मेजॉरिटी इन इलेक्शन, देन 2 or more parties can join hand to make government, that is coalition government. प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट का एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब सरदार सरोवर डैम बनाया गया नर्मदा रिवर पर, तो जो लोकल पीपल थे जो डिस्प्लेस हुए अपनी लैंड से, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, एक प्रेशर ग्रुप बनाया और मूवमेंट शुरू किया कि उनको अपने इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ रहा है रिच लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या अर्बन पीपल के लिए, क्योंकि डैम्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। बाद में ये जो मूवमेंट था इतना बढ़ा कि जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं सभी के अगेंस्ट आवाज़ उठने लगी कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इनके लॉसेस भी हैं एक्वाटिक लाइफ के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, और ये एक बड़ा मूवमेंट बन गया। अब चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आई वुड लव टू हियर इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a good day.